Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter and that is called circle. सबको पता है सर्कल के बारे में. Everybody know everything about the circle. But that was actually Euclidean geometry. Euclidean geometry में सर्कल के बारे में what we know कि एक सर्कल is a collection of point, or you can say locus of a point at a fixed distance from a fixed point, at a constant distance from a fixed point. We know that fixed point is called center, the constant distance is called radius. सर्कल का सेंटर और रेडियस हो गया. सर्कल का एरिया पता होता है पाई आर स्क्वायर. सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर. सेक्टर का एरिया होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2. सर्कल का सेक्टर में एंगल क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं. सेक्टर में एंगल अगर थीटा है तो लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू बट दैट इज एवरीथिंग इज अबाउट यूक्लिडियन ज्योमेट्री. व्हाट वी आर डूइंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट होता है उसका पोजीशनिंग. नाउ वी कैन एक्चुअली पोजीशन अ सर्कल टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. So let me give you some examples, some definitions of circle and then we'll start from there. And the very first definition is what we know, what we already know, and that is locus of a point at a constant distance from a fixed point. लोकस के फॉर्म में अगर बोला जाए तो आई कैन से PC इक्वल टू आर. वी नो दैट कि P वेरिएबल पॉइंट होता है. लोकस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं. तो P वेरिएबल पॉइंट होता है जो मूव करता रहता है. C कैपिटल है एक फिक्स पॉइंट होगा. R एक नंबर है स्मॉल लेटर है एक फिक्स नंबर होगा. तो PC इक्वल टू R मतलब लोकस ऑफ पॉइंट P which is at a distance R from a fixed point कैपिटल C. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में स्टोरी क्या होती है? सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड सेकंड डेफिनेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है? नो इट इज नॉट डायमीटर फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ सर्कल होता है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट से P सच दैट ratio of its distances from A and B is a constant but not equal to 1. तो अगर लोकस के फॉर्म में if I write I can say PA by PB is lambda which is a constant but not equal to 1. PA by PB equal to lambda, a constant but that is not equal to 1. Third, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो you know that कि if we have a circle और सर्कल का कोई भी chord, any chord of circle always subtends a fixed angle at the circumference. Sorry. All these angles will be actually same, say alpha. And also all the angles on this side will also be a constant, though it will be pi minus alpha. तो अगर मैं डायमीटर ले लेता हूं तो उधर भी अल्फा हो जाएगा मतलब 90 और इधर भी अल्फा इधर भी 90. तो दोनों साइड 90 हो जाएगा, फुल सर्कल बन जाएगा, दैट इज डायमीटर. तो अगर एक सर्कल है विद ए बी एज डायमीटर तो उसके हर पॉइंट पे एंगल विल बी 90 डिग्री.
These are some definitions we already know about the circle. सर्कल के बारे में ये चीज हमें पहले से पता है. इफ यू हैव डन कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल नो अबाउट दिस ऑल्सो. यूजुअली हमें फर्स्ट पता होता है, सेकेंड और थर्ड पता होता है, लेकिन दिस इज योर अनदर स्टोरी दैट डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट्स, इसलिए इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं. बट these are basic understanding of circle. What we are going to start with is the equation of circle. Equation के अलग अलग circles we are going to do. And the very first idea I have is ये PC equal to R वाला concept. PC equal to R का मतलब P point को let me take x comma y. If you remember locus, you will say कि नहीं सर h comma k लेते हैं locus को. But I am a teacher. I can take whatever I want, but you are not supposed to. जब भी locus का question आएगा, you have to take h k और बाद में x y put करेंगे. Because as a student, you may make mistake. As a teacher, I know कि कहाँ मुझे h k लेना है और कहाँ मैं x y ले सकता हूँ. h k is always correct. x y is sometime correct. So once you will be thorough with this chapter or the whole mathematics of the locus, you still take h comma k, and after you are done, then you can choose when to take h k and when to take x y. So C point को let me say alpha beta और R जो है वो R रहने देते. So if I say PC equal to R, that gives me under root x minus alpha square plus y minus beta square equal to r. अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो मिलेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर रेडियस form. This is called center radius form. This is your first equation. Second equation, if I say कि अल्फा बीटा 0 हो गया, ये तो क्या केस हुआ, सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है r. If I say कि सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर मैं सेंटर ओरिजिन पे कर देता हूं सो आई विल से कि अल्फा बीटा 0 0 हो गए. सो इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. This is called standard form of circle. And then third one is actually called general equation. And you know that general equation कहाँ से आता है, general second degree equation से. If you remember ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 was general second degree equation. अब ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता था, जब उसका डेल्टा नॉन जीरो हो, a इक्वल टू b हो एंड h इक्वल टू 0. a equal to b, h equal to 0 and delta not equal to 0. So this equation will actually reduce to ax square plus 2 plus by square plus 2gx plus 2fy equal to 0. Let me say कि ये f dash g dash ऐसा और c dash है. So this will be a equal to b कर दिया मैंने तो b की जगह a हो गया और h equal to 0 किया, h का टाइम गायब. Now let me divide everything by a and what do I get, x square plus y square plus 2 g dash by a को let me write g और f dash by a को let me write f और c dash by a को let me write c. And this is called general equation of circle. General equation of circle.
तो इसके अलावा और भी फॉर्म आएंगे, बट फॉर नाउ वी हैव दीज 3 फॉर्म. पहला सेंटर रेडियस फॉर्म, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड थर्ड इज जनरल इक्वेशन. नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइन, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था कि फॉर लाइन व्हाट वी नीड इज अ पॉइंट एंड स्लोप. अगर पॉइंट और स्लोप पता है तो वी कैन इजीली फाइंड एनी लाइन. जो भी इक्वेशंस में लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता था, वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि कहां से पॉइंट मिलेगा, कहां से स्लोप मिलेगा. तो 90% केसेस में पॉइंट और स्लोप मिल जाते थे, और कुछ केसेस में 2 पॉइंट मिलते थे. 2 पॉइंट मिल गए तो वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म, बट मेन फोकस वाज ऑन पॉइंट एंड स्लोप. सेम हियर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सर्कल, जब भी सर्कल की बात करेंगे तो ओनली थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज center and radius. Now, if we have center, if we have radius, which form we are going to use? Obviously, center radius form. और center radius form क्या है? x minus alpha whole square plus y minus beta whole square equal to r square. जहां अल्फा बीटा उसका सेंटर हो जाएगा और रेडियस r हो जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. इसका सेंटर क्या है? सेंटर इज 0,0. हमने अल्फा बीटा को 0 0 लिया, और रेडियस अभी भी r है. तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. तो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इक्वेशन, देन आल्सो यू नीड टू नो द सेंटर एंड रेडियस. सो लेट मी राइट द सेंटर इज -g, -f, एंड रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अभी बताता हूं कैसे आया, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड दिस. सर्कल की इक्वेशन में ए को और बी को इक्वल होना कंपल्सरी है. ए हैज टू बी इक्वल टू बी, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी कि वो 1 हो. यहां तो ए और बी का वैल्यू 1 हो गया, बट अगर दोनों सेम है तो दोनों को ए रखने का मतलब नहीं है पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दे. सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, every single time you have to make sure that x square और y square के कोफिशिएंट दोनों 1 1 ही होंगे. Whatever formula we are going to use, whatever method we are going to use, every case, in every single case you have to convert such that x square और y square का कोफिशिएंट 1 हो. There may be some cases, there may be some formula जो 2 2 के लिए भी काम करेगा, 3 3 के लिए भी काम करेगा, 1/7 1/7 के लिए भी काम करेगा. लेकिन we are not going to do that. We are going to make it 1 every single time. So first thing is x square y square का कोफिशिएंट 1 बना लेने का. Now the center is, ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट 2g, उसको -2 से डिवाइड किया -g. y का कोफिशिएंट 2f. If it divided by -2, what do I get? -f. तो सेंटर कैसे मिलेगा? x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो. और रेडियस के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट टर्म. अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी ओके विद एवरीथिंग, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू हाउ. ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2gx सेपरेट किया, y स्क्वायर प्लस 2fy सेपरेट किया, और c को मैं इधर ले गया. ऑल गुड. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड g स्क्वायर, आई एम गोइंग टू ऐड f स्क्वायर, सो दिस विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इज व्हाट? फर्स्ट ब्रैकेट इज x प्लस g का होल स्क्वायर, and this is y plus f का whole square equal to g square plus f square minus c. And then I am going to convert that to this form. अगर इसे इक्वेट करोगे तो अल्फा क्या है? अल्फा की जगह देखोगे तो -g लिखा हुआ है. सेंटर अल्फा था तो सेंटर -g हो गया. बीटा की जगह इफ यू सी y minus beta is written as y plus f. तो बीटा is actually replaced by -f, y कोऑर्डिनेट -f. r स्क्वायर की जगह g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो r क्या हो जाएगा? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c.
So these are three basic form of circle, basic equation of circle. First one is center radius form. कब यूज करेंगे? जब सेंटर या रेडियस गिवन हो या रिक्वायर्ड हो. सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं? जब कोई भी चीज हमें डिराइव करनी हो, सोचना हो, समझना हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल सा है. सिंपल से फॉर्म पे सोच लो और उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्कल्स. वो लेटेस्ट स्टेज में आएगा. और फाइनली जनरल इक्वेशन कभी भी यूज कर सकते. सो दीज आर द थ्री फॉर्म मेजरली वी आर गोइंग टू यूज. एंड नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस एंड देन वी विल प्रोसीड टू फर्दर कॉन्सेप्ट्स. सो ये एक बार तीनों के तीनों लिख लो, पॉज कर लो वीडियो को, ध्यान से समझ लो. कोई भी पार्ट मिसिंग हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, एक बार और देखोगे, सुनोगे, समझ में आ जाएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस.